Narayan. In this video, I have picked up a question to discuss from the Sanat Sujata Parva of Mahabharat. This is a conversation between Dhritarashtra and Rishi Sanat Sujata, a beautiful Parva which describes and elaborates the principles and nature of Brahma, the absolute, of the nature of knowledge, of ignorance, and our own duties, by which we can acquire emancipation in this life itself. So the question that I have picked up from Dhritarashtra to Sanat Sujata is this. He says that I have seen two lots of people in my life. One particular lot is the one which chooses the path of action, the path of dharma, and which can be called as pravritti marg. So people acquire dharma, acquire merits by those very karma, and then they expect those punya, those merits to take them to emancipation, moksha. There is a different lot of people which has chosen the path of inaction. They have renounced action, karma, they have renounced the world, and through this renunciation, the penance that originates of this renunciation, they expect this penance to take them to emancipation, that is moksha. So there are two paths, the pravritti marg and the nivritti marg. Both these marg are seeking emancipation. So Dhritarashtra has a question that, considering both these marg, both these paths in mind, tell me which one is superior in destroying our sins, and is the path of dharma, path of action, much superior in destroying sins, or is adharma superior in not allowing dharma to destroy those very sins? So this is the question of Dhritarashtra, and I will give you the answer of Sanat Sujata in a gist. He says that both these paths are capable of bestowing emancipation to the seeker, provided that the person who chooses these paths is equipped with the necessary requisites that is required to achieve emancipation. Now, the path of action is what he says is superior in destroying sins if the person who has adopted the path of action is full of wisdom. So, in that terms, Sanat Sujata says that a wise man is he who chooses knowledge as the means of acquiring emancipation. Now, knowledge is applied in the path of action as well, and knowledge is applied in the path of inaction as well, because the root of karma is knowledge. So, if a person who has knowledge of what karma to perform, what karma to avoid, by the means of which I can I can acquire the maximum happiness, maximum merits, punya, and I can minimize my pap, minimize my demerits. If a person knows, he he is knowledgeable in that aspect of choosing those karma and rejecting certain karmas, then that person is the foremost in the path of action, and such man can acquire emancipation the fastest. In terms of nivritti marg, the person who has developed complete dispassion and who has perfected his knowledge, only he is eligible to walk the path of inaction, that is nivritti marg, because such a man is bereft of the desire of the worldliness, and then he acquires emancipation the fastest on this walking the path of inaction. So he is the foremost of the person walking the path of inaction. So it should not be thus that someone who has developed dispassion and then he chooses the path of inaction, but the dispassion is wavering, it does not stay for long, and then again walking the sannyas path, he again dwells in the thoughts of grihastha, he again dwells in the thought of woman, of praise, dispraise, and he becomes envious of others. So such a man is not eligible to walk the path of inaction, because if such a man walks the path of sannyasi, he will neither do justice to nivritti marg, or nor will he do justice to pravritti marg. So he'll be reft from both these paths. So the prime requisite, what Sanat Sujata says, is knowledge. The knowledgeable man can acquire emancipation by the path of action, by choosing what karma to do, what karma to avoid, and thus he acquires merits, maximum merits, and
avoids maximum demerits, and he acquires emancipation, he acquires moksha. And the path of inaction, a person must have complete dispassion, and he should have perfected his knowledge in terms of scriptures and the Brahma, the knowledge of the Brahma, the absolute, and then he can walk the path of inaction and acquire emancipation the fastest. So in terms of the answering the question of Dhritarashtra, which path is superior in destroying the sins, Sanat Sujata says that the path of action, the path of dharma, the path of pravritti is superior in destroying the sins, provided the person is knowledgeable. So if someone who is performing certain karma, if he does not know, if he does not have the knowledge to perform those karma, to choose specific karma and to reject specific karmas, such that he can maximize happiness and minimize misery. So if he does not have that knowledge, that discrimination in his mind, he will be unfit to walk the path of pravritti, the path of action. So such is the conclusion of Sanat Sujata. ये वीडियो में मैंने जो प्रश्न लिया है बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ये महाभारत से लिया गया है, सनत सुजाता पर्व से लिया है, और इसमें धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र और ऋषि सनत सुजाता, इन दोनों के बीच का संवाद है। बहुत ही सुंदर पर्व है, महाभारत के ज्ञान से भरा हुआ है, और इसमें ब्रह्म ज्ञान की ही बातें कही गई है, प्रश्न पूछे गए हैं, और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए जिसके माध्यम से हम जल्दी से जल्दी इसी जन्म में, इसी जीव में मोक्ष प्राप्त कर सके। तो ऐसे सब प्रश्न पूछे गए हैं धृतराष्ट्र द्वारा, और सनत सुजाता बहुत प्रसन्नता पूर्वक एक एक प्रश्न के उत्तर देते जाते हैं। और ये एक प्रश्न जो मैंने चुना है वह ये है कि धृतराष्ट्र उनको पूछते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में दो प्रकार के वर्ग देखे हैं समाज में। एक प्रकार का वर्ग ऐसा है जो प्रवृत्ति मार्ग को अपनाता है, जो धर्म के मार्ग को अपनाता है। धर्म के मार्ग से वह सब कुछ प्राप्त करते हैं, और धर्म के मार्ग से जो पुण्य प्राप्त होता है तो वो पुण्य के आधार पर वो आशा रखते हैं कि ये पुण्य उन्हें मोक्ष प्राप्त करा सके। तो एक ऐसा वर्ग है। एक दूसरा वर्ग है जो निवृत्ति मार्ग अपनाता है, जो जिन्होंने कर्म का त्याग किया है, संसार का त्याग किया है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वह ये मानते हैं कि हमने जो त्याग किया है, त्याग से जो तप करते हैं, तो तप के माध्यम से हमें मोक्ष प्राप्त हो। तो ऐसी उनकी इच्छा होती है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के लोगों के लिए। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ये दोनों में से कौन सा ऐसा श्रेष्ठ मार्ग है जो हमारे पापों को नष्ट करने में समर्थ है, और क्या प्रवृत्ति मार्ग, पाथ ऑफ एक्शन, पाथ ऑफ धर्म, धर्म में वो शक्ति है कि हमारे पापों को नष्ट कर सके, या अधर्म इतना शक्तिशाली है कि धर्म को ऐसे पाप नष्ट करने में वह अड़चन उत्पन्न करता है। तो कौन सा अधिक शक्तिशाली है और कौन किसको कब कैसे अपनाए? तो ये प्रश्न धृतराष्ट्र का सनत सुजाता के लिए है। और ऋषि उत्तर देते हैं, बहुत ही सुंदर उत्तर है। वह कहते हैं कि दोनों ही मार्ग जो है वह सामर्थ्य रखते हैं कि याचक को अपने गंतव्य तक पहुंचा सके। अगर वह गंतव्य मोक्ष है तो मोक्ष दोनों मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। पर वो कहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता रहे। अभी ज्ञान मार्ग इन्होंने कहा है, तो ज्ञान जो है वह अगर देखा जाए तो निवृत्ति मार्ग में प्रधान है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग में केवल और केवल मन की ही चेष्टा होती है, कर्म नहीं होते हैं। तो मन के जो कर्म होते हैं उसी को हम कर्म कह सकते हैं, और मन का जो कर्म है वो ज्ञान है। तो ज्ञान में ही उलझे रहते हैं और ब्रह्म ज्ञान में लीन होते हैं। तो ज्ञान प्रधान साधन माना गया है निवृत्ति मार्ग में। मगर ज्ञान आप अगर एक दृष्टि से देखें तो प्रवृत्ति मार्ग में भी ज्ञान ही है, क्योंकि कर्म जो करते हैं कर्म के मूल में ज्ञान है। ज्ञान के बिना कर्म कैसे होगा? तो या तो वो ज्ञान परिपक्व होता है या अपरिपक्व होता है, ये संभावना होती है। तो
सनत सुजाता ऋषि का ये उत्तर है कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ साधन है मोक्ष प्राप्त करने का। बुद्धिमान मनुष्य ज्ञान का ही चयन करता है। तो उससे हमें ये समझना चाहिए कि जो अगर प्रवृत्ति मार्ग में अगर कोई पथक है, कोई पथिक चल रहा है, इसने चयन किया है कि मैं प्रवृत्ति मार्ग से धर्म प्राप्त करूंगा, पुण्य प्राप्त करूंगा और पुण्य के माध्यम से मैं मोक्ष तक पहुंचना चाहता हूं, तो ऐसा कोई इच्छुक है प्रवृत्ति मार्ग वाला, तो उसमें अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वह नरक में ही जाएगा। क्योंकि अगर कर्म करने का ज्ञान, अगर ज्ञान बिना का जो कर्म है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर अगर ऋषि कहते हैं कि अगर ज्ञान प्रधान है, ज्ञान श्रेष्ठ है, और ऐसा मनुष्य है कि प्रवृत्ति मार्ग में चल रहा है मगर उसके पास श्रेष्ठ ज्ञान है कि कौन से कर्म का चयन करना चाहिए, कौन से कर्म को त्याग देना चाहिए, जिसके माध्यम से मेरे जीवन में अधिक से अधिक पुण्य मैं कमा सकूं और कम से कम पाप आए मेरे जीवन में। तो ऐसा अगर ज्ञान हो तो वह श्रेष्ठ पथिक माना गया है ऐसे मार्ग पर चलने के लिए। प्रवृत्ति मार्ग का श्रेष्ठ पथिक माना गया है और ऐसा मनुष्य ही जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसे मार्ग पर चलते हुए। तो ज्ञान प्रधान यहाँ पर भी है। और अगर हम निवृत्ति मार्ग का रास्ता देखें तो निवृत्ति मार्ग में अगर कोई ऐसा मनुष्य है जिसको वैराग आया है, उत्पन्न हुआ है, और वैराग उत्पन्न होते ही वह निवृत्ति में आ गया है, प्रवृत्ति से निवृत्ति में आ गया है, और उसका जीवन ऐसा है कि वह आगे बढ़ रहा है मगर फिर आगे जाके फिर से राग उसमें उत्पन्न हो गया है गृहस्थ के प्रति। और राग माने काम क्रोध मोह लोभ, ये सब उसके जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, शत्रु है, वह सभी संन्यास मार्ग में फिर से आ गए हैं और वैराग दूर हो गया है और फिर से राग दृढ़ होता जा रहा है। तो फिर वह यहाँ का भी नहीं रहेगा और यहाँ का भी नहीं रहेगा, ना तो प्रवृत्ति ना तो निवृत्ति, दोनों में से गया। तो उसके लिए श्रेष्ठ है कि ऐसा ही मनुष्य जिसके अंदर पूर्ण रूप से वैराग उत्पन्न हुआ हो और वो वैराग प्रतिदिन दृढ़ बनता जा रहा हो, वैराग संसार के प्रति और भगवत प्राप्ति के प्रति संपूर्ण राग। तो ऐसा अगर मनुष्य हो तो ऐसा मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है निवृत्ति मार्ग में चलने के लिए। तो ऐसा ही मनुष्य जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकता है क्योंकि उसमें संपूर्ण वैराग्य है और उसमें परिपक्व ज्ञान है। और ज्ञान जब परिपक्व होता है तो फिर वैराग तो स्वभाव से आ ही जाता है। और ऋषि ऐसा क्यों कहते हैं कि निवृत्ति मार्ग श्रेष्ठ है, वह उसको ज्ञान का मार्ग कहा गया है? क्योंकि हमको अगर हमारे जीवन काल में भी देखें तो हमको ऐसे मनुष्य लगभग दुर्लभ ही है, करोड़ों 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 में ऐसा एक हमको मिलेगा जो जन्म से ही वैराग वृत्ति वाला हो और जन्म से ही उसको संसार के प्रति वैराग हो और केवल भक्ति में ही राग हो, भगवत प्राप्ति में ही राग हो। तो ऐसा मनुष्य तो करोड़ों अरबों में एक मिलता है। तो इसीलिए अगर ऐसा है तो उसको तो श्रेष्ठ है, उसके लिए उचित कि वह निवृत्ति मार्ग ही अपनाए। मगर ऐसा नहीं है, लगभग ऐसा होता ही नहीं है, बहुत ही दुर्लभ होता है। मगर इसलिए ऋषि कहते हैं कि ज्ञान का मार्ग जो निवृत्ति मार्ग है वह श्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग कहा गया है। मगर प्रवृत्ति मार्ग में भी ज्ञान तो प्रधान होना ही चाहिए, नहीं तो हम सब नरक में ही गिरेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा फिर कि हमको कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है। तो अगर यही नहीं पता है तो हम पाप ही एकत्रित करेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या आ जाएगी। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि जो द्रव्यवादी होते हैं, जो मटीरियलिस्ट होते हैं, जिनको द्रव्य प्राप्ति में ही अपना जीवन व्यापन करना होता है, भले ही वह धर्म के माध्यम से प्राप्त करे अर्थ, और अर्थ के माध्यम से फिर उनकी कामनाएं पूर्ण होती है। तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं अगर वह अपनी वृत्तियों को शांत न कर पाए समय सर, समझो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ आता है, तो उसमें भी अगर वह अपनी वृत्ति को शांत न करे तो वह वृत्ति उनका स्वभाव बन जाती है और वो वृत्ति उनके मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा में छप जाती है और आत्मा के साथ ही रहती है वृत्ति। और फिर वही वृत्ति उनको आत्मा को फिर से विवश करती है जन्म लेने के लिए, और फिर वह फिर से जन्म लेके फिर वही वृत्ति को
क्रियान्वित करने में रहते हैं और फिर वह पाप पुण्य कमाते रहते हैं और फिर पुण्य कमा के स्वर्ग में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, पाप कमा के नरक में दुख भोगते हैं, फिर वापस आते हैं। तो उनका जो ये निरंतर जन्म मरण का जो चक्कर है वो चलता ही रहता है और दुख तो होता ही है। इसलिए हमको ये शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का भय, तो उसी को दूर करने के लिए शास्त्र हमें ज्ञान देता है। तो मटीरियलिस्ट जो होते हैं, द्रव्यवादी की ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और भौतिकवादी अगर हम कहें कि जो लोग हमारे अपने शरीर को ही आत्मा मानते हैं, तो शरीर को ही आत्मा मानने वाले लोग तो केवल और केवल पैसा और हमारी उनकी जो इंद्रियों की इच्छा है वही पूर्ण करने में रहेंगे। तो ये तो पशु का ही जीवन हो गया, क्योंकि धर्म बिना का जो अगर मनुष्य है तो वह पशु समान है, ये शास्त्र कहता है। तो पशु वृत्ति ही अगर है तो फिर उनको जो मानव जीवन मिला है वह तो विफल ही गया। भगवान फिर उनको फिर से मानव जीवन क्यों दे? क्योंकि उनकी पशु वृत्ति है, अभी तक पशु वृत्ति उनकी उभरी नहीं है, वह उब नहीं गए हैं। तो फिर वापस उनको पशु वृत्ति में ही जन्म मिलता है, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हो जाते हैं कि उनको उनके कर्म में वह बंध जाते हैं और पशु वृत्ति वाले कर्म होते हैं, तो फिर उनको फिर से नीचे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए ऋषि बहुत ही सुंदर समझाते हैं कि ज्ञान है वह दोनों में प्रधान है। और ये जो भौतिकवादी है, मटीरियलिस्ट है, द्रव्यवादी है, उनको अगर ये वृत्ति अगर वो शांत नहीं करते हैं तो वह फिर बहुत ही निरंतर जन्म लेते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं। तो इस दृष्टि से ऋषि कहते हैं कि ज्ञान बहुत ही प्रधान है, और जो मनुष्य बहुत बुद्धिशाली अगर मनुष्य है वह ज्ञान का ही चयन करेगा और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता रहेगा। और ज्ञान जो है उसका उपयोग प्रवृत्ति मार्ग में भी प्रधान है, जिसके माध्यम से वह कर्म चुन चुन के कर सकता है और पुण्य ही कमाएगा और फिर मोक्ष प्राप्त करेगा। और ज्ञान जो है वह निवृत्ति मार्ग में भी प्रधान है, और उसके माध्यम से वह ब्रह्म का चिंतन करेगा, ब्रह्म में लीन होगा, केवल और केवल अपना प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर में ही ये सृष्टि में घूमता रहेगा, मगर उसका मन, उसका हृदय संपूर्ण रूप से ब्रह्म में ही लीन होगा। उसको देह भान ही नहीं होगा कि मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो पैर हैं, मैं ये मनुष्य हूँ, मेरा ये नाम है। वह ब्रह्म में लीन हो चुके होंगे, केवल शरीर से घूम रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे लोग निवृत्ति मार्ग में श्रेष्ठ कहे गए हैं और वह जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और एक क्रॉस रेफरेंस मैं आपको देता हूँ, मनुस्मृति जो बहुत सुंदर ग्रंथ है, लोग मनुस्मृति को जलाते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ी ही नहीं है। अगर वह गुरु के सानिध्य में बैठकर पढ़ते हैं तो उनको पता चलेगा मनुस्मृति ऐसा ग्रंथ है जो सभी, एक छोटी सी चींटी और जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन सभी का उद्धार भी मनुस्मृति के द्वारा होता है। तो ऐसा सुंदर ग्रंथ है ये मनुस्मृति। और गुरुदेव मनुस्मृति का सार कहते हैं बहुत बार, वह कहते हैं कि निर्वृत्तिस्तु महाफला। वह कहते हैं कि महाफल जो है हमारा जीवन का वह निर्वृत्ति है। तो उनका ये कहना है कि प्रवृत्ति के गर्भ से निवृत्ति निकलनी चाहिए और निवृत्ति के गर्भ से निर्वृत्ति निकलनी चाहिए। अगर ये क्रम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में ये क्रम नहीं है, तो फिर हम नरक में ही जा रहे हैं, ये निश्चित है। अगर प्रवृत्ति के मार्ग से प्रवृत्ति ही निकल रही है या एक से अधिक प्रवृत्ति निकल रही है तो हम लगभग नरक में ही हैं और नरक में ही जाएंगे। तो प्रवृत्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि धीरे धीरे हमारा ऐसा भाव होने लगे कि हम निवृत्ति की तरफ आकृष्ट हो, और निवृत्ति में जब आ जाए तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारी सारी वृत्तियां जो है, काम क्रोध मोह लोभ, वह सभी सूख जाए, वह सब गल जाए, वह सब नाश पावे और हम सब वृत्तियों का नाश करके हम केवल और केवल ब्रह्म में ही लीन रहने लगे। तो ये निर्वृत्ति कही गई है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, एक मोशन से दूसरा मोशन या दूसरा एक या अधिक मोशन उत्पन्न होता है तो वह मोशन नहीं है। ये साइंस भी कहता है a motion that actually produces one or more motion is no motion at all,
because that is not a motion, that is not as motion. A motion must actually give rise to something which is not, which is the opposite of motion, which is the opposite of action. Action must result into inaction at a point of time. Otherwise, if we only act and one act produces 10,000 acts, where will we end? How will we be happy? How will we be peaceful? तो यही है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वृत्ति, यही हमारा जीवन का क्रम होना चाहिए। तो ये अगर होगा तो ही हमको महाफल निर्वृत्ति का मिलेगा। और ऐसा जीवन जीने के लिए ही मनुस्मृति का जो जीवन जीने का विधान हमें कहा गया है, वर्ण के आधार पर हमें कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किस पर हमारा अधिकार किस में है, हमारा अधिकार किस में नहीं है। तो हम अगर ऐसे जीवन जीते हैं तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति गलती जाती है, सूखती जाती है। और जैसे हम गृहस्थ के बाद बुढ़ापे में आते हैं, वानप्रस्थ में आते हैं, तो हमारी लगभग निर्वृत्ति हो चुकी होती है और हमारी वृत्तियाँ शांत हो चुकी होती है। और फिर हम धीरे धीरे जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के चरण में बैठते हुए ज्ञान प्राप्त किया है, जीवन से जो हमने ज्ञान सीखा है, तो वह ज्ञान हमें फिर वानप्रस्थ में काम आता है, संन्यास में भी काम आता है। तो निर्वृत्ति तो श्रेष्ठ फल कहा गया है। अगर वहाँ तक हम नहीं पहुँच रहे हैं, अगर हम प्रवृत्ति से निवृत्ति के तरफ भी नहीं पहुँच रहे हैं, तो भी हम नरक में ही जा रहे हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए कि जैसे धीरे धीरे हम आज मैं गुलाब जामुन खाऊँ तो धीरे धीरे मैं अगर जीवन जीता जाऊँ और खाते जाऊँ, तो एक समय ऐसा आना चाहिए जब मैं गुलाब जामुन से ही उब जाऊँ। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि बस अभी बहुत हो गया, अभी मैंने बहुत खा लिया गुलाब जामुन, अलग अलग प्रकार के खा लिए, अलग अलग स्त्रियों ने बनाए हैं, ये अच्छा बनाती है, वो अच्छा बनाती है, पत्नी, माँ, मौसी, चाची सब ने बनाया तो सभी के खाए, और फिर मैं अभी ऊब गया हूँ, सभी टेस्ट कर लिया, अभी मुझे गुलाब जामुन से आसक्ति नहीं है। तो ऐसा भाव उत्पन्न होना चाहिए, और ऐसा भाव उत्पन्न होने के बाद वो भाव दृढ़ होना चाहिए। फिर गुलाब जामुन को देख के ही ऐसा ऊब जाने का मन होता है कि हमें क्रोध आता है कि भाई छोड़ो, अभी हमें नहीं चाहिए, हमको त्याग करना है। तो प्रवृत्ति, निवृत्ति और फिर निर्वृत्ति, यही श्रेष्ठ क्रम कहा गया है। तो ये मैं यही अंत करता हूँ। ये सुंदर संवाद हमने आज सुना और चर्चा की धृतराष्ट्र और ऋषि सनत सुजाता के बीच में। अगर आपको ऐसे सुंदर संवाद पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मगर गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर आपको संपूर्ण वैदिक वांग्मय का, शास्त्र का ज्ञान मिलेगा और शास्त्र ही आपसे बात करेंगे। अगर आप वो अपने जीवन में अपनाते हैं, धीरे धीरे एक बात भी अपनाते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य निश्चित है। शिव शंकर प्रलयंकर।